Dear students, today I will teach you about two sets which is related to chapter first class 11th. My name is D.S. Raghav and this is my first video in 11th class for chapter first. First of all, I want to teach you what is the definition of set. Set is a well-defined collection of an object. Well-defined collection means the set which can be defined. For example, number of students in a class. Number of student in a class. In a class. This is the well-defined collection. You can define the number of students in a class, number of states in a country. You can define. So this is a set. Next, I will teach you types of sets. There are two types of sets. Number first, tabular form or roster form. Number second, set builder form. Tabular form or roster form means a set which can be written in a curly bracket. For example, A is equal to 2, 4, 6, 8. This is the tabular form of set. It is written always in curly bracket. Second, set builder form. Set builder form means you can write a set according to the property. For example, these are the even number from 2 to 8. It can be written in another form. A is equal to x such that x is an even number 2 greater or less than x or greater than 8. So it can be written in another form. This is according to their property and this is written in a curly bracket. So this is a tabular form and this is a test builder form. Exercise 1.1 is based on two types, roster form or table set builder form. And now I will teach you what is the number of element of set. Number of element of a set. The symbol is this one. This one is the number of elements because here 2 is the number of set A, so it can be written 2 belongs to A. It is also known as belongs to, or it is also known as number of elements. 2 belongs to A. 4 belongs to A. Here 5 is not belongs to A. 5 is not given in set A, so 5 is not an element of set A. This is the number of element of set. So exercise 1.1 is based on these two types, set tabular form or set builder form, or number of elements of a set. For example, एक्सरसाइज 2.1 का मैं क्वेश्चंस आपको करके दिखाता हूं. इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, यही दोनों टाइप्स जो मैंने आपको सिखाया है इसको ही आपको बताना है. सबसे पहला क्वेश्चन है इसका एक्सरसाइज 1.1 का कि आपको बताना है कि ये सेट है या नहीं है. जैसे पहले का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, द नंबर ऑफ मंथ्स बिगिनिंग फ्रॉम जे. नंबर ऑफ मंथ beginning alphabet J. It means January, June, July. These are the months which starts from letter J. So it can define. So this is a set. So question number first, which is the set and which is the not set. And another question number
फर्स्ट सेकंड पार्ट, राइट द 10 writers, write the 10 writers, 10 best writers. Best writers is not a set because it cannot be defined. For example, आज अगर कोई अच्छा लेखक है तो 2 दिन बाद कोई और अच्छा लेखक हो जाता है, इसलिए इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो बेस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहूं कि बेस्ट क्रिकेट प्लेयर ये सेट है या नहीं है? बेस्ट क्रिकेट प्लेयर सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। आज सचिन तेंदुलकर बेस्ट प्लेयर है, आगे चल के राहुल द्रविड़ हो जाएगा, या मान लो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल विराट कोहली कुछ समय पहले था, आज ऑस्ट्रेलिया का एक प्लेयर हो गया। तो इसलिए बेस्ट प्लेयर को हम सेट के रूप में नहीं ले सकते। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसी से रिलेटेड करना है आपको। और क्वेश्चन नंबर सेट्स में क्या करना है आपको, बिलोंग्स टू है या नहीं इसको आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.1 का, एक सेट दे रखा है A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6 और नंबर फर्स्ट हमें इसके अंदर ये बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू ये साइन इसके अंदर फिलअप करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 5 डॉट 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 ए। अब ये 5 इसके अंदर एलिमेंट है या नहीं है, और एलिमेंट्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, इससे बिलोंग्स टू से। सो इसके अंदर हम भर देंगे 5 बिलोंग्स टू ए। सेकंड पार्ट है 8 डैट डैट डैश ए। अब इसका 8 एलिमेंट नहीं है, जब 8 एलिमेंट नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू, इसको आप इसके अंदर फिलअप कर सकते हो। 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है। A इज इक्वल टू, ये फर्स्ट पार्ट है थर्ड का, A इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर वेयर -3 greater x less than 7. This is written in roster form. It means x की वैल्यू -3 से तो बड़ी है और 7 से छोटी है। तो इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखें तो क्या करेंगे, -3 से बड़ी कौन सी होती है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरीके से इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म आपको दे रखा है, अब इसको आप इस तरीके से लिखेंगे तो ये रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। तो इस आधार पे आप क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी कर सकते हो। इसी पे बेस्ड ये एक्सरसाइज 1.1 आपको दे रखी है। 7 तक नहीं लिखेंगे, स्मॉल देन 7 बिकॉज x इज लेस देन 7, सो 6 इज द लेस देन 7। तो इस तरीके से वी कैन नॉट राइट डाउन अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। x की वैल्यू -3 से तो बड़ी है लेकिन 7 से छोटी है। 7 से छोटी क्या होती है, 6। तो -2 से लेकर के 6 तक इसको राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक। ये है एक्सरसाइज 1.1। अब मैं आपको बताना चाहूंगा एक्सरसाइज 1.2। 1.2 में क्या है, टाइप्स ऑफ सेट्स है इसके अंदर। टाइप्स ऑफ सेट्स कौन कौन से होते हैं इसमें, सबसे पहले आता है नल सेट। एक्सरसाइज 1.2 में टाइप्स ऑफ सेट, एक्सरसाइज डाल दो। एक्सरसाइज 1.2 सबसे पहला सेट आता है नल सेट। नल सेट को मैथमेटिकल लैंग्वेज में फाई से लिखा जाता है। फाई का मतलब होता है कोई भी एलिमेंट सेट के अंदर नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बोल दिया, मान लीजिए कोई सेट A इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू, एक तरह से ये कहें आदित्यनाथ योगी is the CM of बिहार। ये मैंने क्वेश्चन बनाया आपके लिए कि इसके अंदर एक एलिमेंट है आदित्यनाथ योगी इज द CM ऑफ बिहार। आदित्यनाथ योगी यूपी के CM है, इसका मतलब बिहार के जब CM नहीं है तो इसको हम नल सेट बोल सकते हैं। नल सेट ये वो सेट होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आता, और नल सेट को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इसको हम इस तरीके से फाई लिख देंगे, A इज इक्वल टू 5।
तो दिस इज द नल सेट। नेक्स्ट आता है इसके अंदर फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब होता है किसी भी सेट के अंदर एलिमेंट्स को काउंट कर सके, जो एलिमेंट्स गिने जा सके उन एलिमेंट्स को बोला जाता है फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू अल्फाबेट a b c डॉट 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 x y z। दिस इज द फाइनाइट सेट बिकॉज ए से लेकर के जेड तक हम अल्फाबेट को काउंट कर सकते हैं, इसीलिए इसको बोलेंगे फाइनाइट सेट। फिर उसके बाद में थर्ड सेट आता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मतलब होता है जिस सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सके, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो सेट के हों वो अनकाउंटेबल हों, उस सेट को बोलते हैं हम इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। अब ये एक से लेकर के इन्फिनिटी तक सेट है, तो इसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए इसको बोलेंगे हम इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट के बाद में आता है इक्वल सेट। नंबर 4 इक्वल सेट। Two sets are called equal sets if number of elements are equal। मेरा कहने का मतलब ये है कि दो सेट इक्वल सेट जब कहलाते हैं जब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने का मतलब होता है जैसे एक सेट दे रखा है a इज इक्वल टू 1 5 7 9 और b सेट इज इक्वल टू दे रखा है 9 7 1 एंड 5। अब इसमें क्या है कि इन एलिमेंट्स को आगे पीछे करके चेंज करके लिख दिया गया है, लेकिन सेम एलिमेंट्स है 1 5 7 9 एलिमेंट्स इसमें ए सेट में है और 1 5 7 9 ही बी सेट में है, इसीलिए इन दोनों सेट्स को इक्वल सेट बोलेंगे। तो ये कहलाएगा ए इज इक्वल टू बी। नेक्स्ट आता है नंबर 5 इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे a इज इक्वल टू दे दिया आपको 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू दे दिया 5 7 9। अब इस a सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 3 और b सेट में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो सेम नहीं हो ये जरूरी नहीं है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं और सेम है, इक्वल है और सेम है, तब तो उसे बोलेंगे हम इक्वल सेट, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है तो उनको बोलेंगे हम इक्विवेलेंट सेट। इसी पर बेस्ड ये आपकी एक्सरसाइज दे रखी है, एक्सरसाइज 1.2। इक्वल कैसे है मतलब? इक्वल सेट्स का मतलब होता है इक्विवेलेंट सेट पहले सेट में एलिमेंट्स हैं वही दूसरे सेट में इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट सेट्स का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल। जैसे पहले सेट में 3 एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 1 2 3, अच्छा। ऐसे ही 1 2 3 तो 3 एलिमेंट्स इसमें है 3 एलिमेंट्स इसमें, तो इसको हम इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। अच्छा ठीक। ये है दोनों में डिफरेंस। इसी पर बेस्ड आपको एक्सरसाइज 1.2 दे रखी है। इसमें सबसे पहला एग्जांपल है कि आप बता, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है इसके अंदर कि आपको हमें ये बताना है कि कौन कौन सा नल सेट है एक्सरसाइज 1.2 में। इसी पर बेस्ड है ये 6 मिनट 5 टाइप बताइए आपको, पांचों टाइप पर बेस्ड है ये एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, ये बताना है आपको कि कौन कौन सा नल सेट है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, number of sets divided by 2 of odd numbers, number of इस तरह से बोलेंगे odd number divided by 2। अब कोई भी ऑड नंबर 2 से डिवाइडेड नहीं होता, इसीलिए ये नल सेट कहलाएगा। तो इसको हम बोल सकते हैं 5 नल सेट को हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट ये बोलता है कि सेट्स डिवाइडेड बाय इवन प्राइम नंबर, सेट्स इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? इवन प्राइम नंबर कोई भी नहीं होता, इसीलिए इसको भी हम नल सेट बोल सकते हैं।
इसका क्वेश्चन नंबर सेट हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड बताना है कौन कौन से फाइनाइट और कौन कौन से इनफाइनाइट सेट है। तो मैंने बताया जिसकी काउंट कर सकते हैं, जैसे सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है सेट ऑफ द मंथ्स, महीनों के सेट्स को लिखना है। तो महीनों को हम लिख सकते हैं, महीनों को 12 मंथ होते हैं, ये सब जानते हैं, तो इसको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। इसी पर बेस्ड है एक्सरसाइज 1.2 जो मैंने अभी अभी बताया था। अब हम पहुंचते हैं एक्सरसाइज 1.3 में। 1.3 में आपको समझाने से पहले मैं इसके बारे में बताऊंगा। इसमें दे रखा है सबसेट। सबसेट को एक साइन है, इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं सबसेट। जैसे फॉर एग्जांपल अब आपको a = दे रखा है 1 2 3, इसकी हमें सबसेट नोट करनी है। तो सबसेट कैसे नोट करते हैं, a = सबसे पहले लिखा जाता है 5 के बाद में एक एक एलिमेंट 1 2 3, फिर उसके बाद में पेयर से लेंगे 1 2 2 3 एंड 3 1, और फिर तीन सेट के हिसाब से लिखेंगे 1 2 3। तो दीज आर द सबसेट्स ऑफ ए। सबसेट्स का मतलब होता है सबसे पहले नल सेट लिखा जाता है इसके अंदर, उसके बाद में एक एक एलिमेंट्स को लिखते हैं, फिर पेयर के हिसाब से लिखते हैं, और उसके बाद में फिर सभी पेयर्स को मिलाकर के लिखते हैं, वो कहलाता है सबसेट। अगर हमें टोटल मान लीजिए ये तो इसके 3 है, मान लो इसमें एलिमेंट्स लिख दूं मैं a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 99। अब इसके सबसेट लिखने के लिए आपको कह दिया जाए तो इतने सबसेट आपको नहीं लिख सकते। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो होते हैं उसके लिए फॉर्मूला दिया गया है एनसीईआरटी में। टोटल नंबर ऑफ सबसेट होते हैं 2 की पावर n, where n is the number of element। अब यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट इस सेट में दे रखे 1 से लेकर के 99, तो 99 हुए, तो n की वैल्यू यहाँ से निकलती है 99। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे 2 की पावर 99। अब 2 की पावर 99 का 2 का मल्टीप्लाई 99 बार करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए इसको यहीं पे छोड़ सकते हो आप आंसर 2 की पावर 99 इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ सच क्वेश्चंस। तो अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट बहुत ज्यादा दे रखे हैं तो आप इस का इस्तेमाल कर सकते हो सबसेट फाइंड आउट करने के लिए। इसी पर बेस्ड है एक्सरसाइज 1.3 जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट बताना चाहूंगा आपको। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में आपको पूछा गया है कि कौन कौन से सबसेट हैं और कौन कौन से सबसेट नहीं है। अगर सबसेट नहीं है लिखना है तो आपको क्या काम करना है, सबसेट को बीच में से क्रॉस आउट कर देना, वो नॉट सबसेट होता है, ठीक है। तो इसके लिए जैसे फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, इसमें दे रखा है 2 3 4 डॉट 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 डॉट, और इसमें इसके आगे दे रखा है 1 2 3 4 5। अब हमें इसके अंदर ये दोनों साइंस में से कोई एक साइंस इंसर्ट करना है। इसका एक तरीका होता है, अगर पहले सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में अवेलेबल हो तो ये पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट कहलाता है। अब 2 3 4 पहले सेट में है और 2 3 4 इसमें भी है, तो इसको यहाँ पे हम ये सबसेट का साइन लगा देंगे, यानी इस जगह पे सबसेट हो जाएगा। अगर मान लो एलिमेंट्स नहीं होते हैं तो वहां नॉट सबसेट आप लगा सकते हो। तो इसी पर बेस्ड आपको एक्सरसाइज 1.3 तक बताया मैंने आज आपको। इसमें सेट से रिलेटेड 1.3 एक्सरसाइज तक के क्वेश्चंस करने हैं, और कोई भी डाउट आपके सामने आती है तो आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डियर स्टूडेंट, थैंक यू।